لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب تمام علماء 2019 میں جب سب نے دستخط کی، جس میں تقی عثمانی صاحب تھے اور مفتی عبدالرحیم صاحب تھے اور دیگر جو مسلک ہے ان کی بھی علماء موجود تھے، جب سب نے اتفاق کیا اور سب نے دستخط کی، تو اب یہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب تمام علماء 2019 میں جب سب نے دستخط کی، جس میں تقی عثمانی صاحب تھے اور مفتی عبدالرحیم صاحب تھے اور دیگر جو مسلک ہے ان کی بھی علماء موجود تھے، جب سب نے اتفاق کیا اور سب نے دستخط کی، تو اب یہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے جو بات کیے ہیں، جو سوالات کیے ہیں، حقیقت یہ دستخط کی جامعۃ رشید کی مفتی عبدالرحیم صاحب داماد برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی دستخط کیے۔ حکومت جو چاہتے تھے کہ یہ وزارت تعلیم میں شامل ہو جائے، تو ہماری جو اتحاد تنظیم المدارس العربیہ دینیہ، یہ جو جتنی مدارس ہے جس میں علماء دیوبند، علماء بریلوی، اہل حدیث، فقہ اور جماعت اسلامی، یہ 5 وفاق شامل ہے، ان کی صدر اور جنرل سیکریٹری ان سب نے، اور جامعۃ الرشید کی مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی دستخط کیے تھے، اور علماء دیوبند کی وفاق المدارس کی شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مسلک بریلوی کے مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر باقی 3 وفاق، سب علماء نے دستخط کیے ہیں۔ لیکن اس وقت میں یہ بات ذکر نہیں تھا کہ وزارت تعلیم میں یہ دینی مدارس شامل ہے، مدارس دینیہ، یا وزارت صنعت اور تجارت کے اندر شامل ہے، یہ بات کوئی ذکر نہیں تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس وقت میں، جو بڑے علماء جیسے اشرف طاہری صاحب اور جامعۃ الرشید کی مفتی عبدالرحیم داماد برکاتہم العالیہ، یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ علماء نے دستخط کیا، اب آبجیکشن کیا ہے، اعتراض کیے ہیں، دستخط تو کیے تھے، لیکن حقیقت میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے وزارت تعلیم میں شامل ہونے کا دستخط نہیں کیے، بلکہ الحاق کے لیے شامل کیے کہ ہاں، اتحاد تنظیم المدارس العربیہ جتنی ہے ہماری، یہ 5 وفاق، یہ وزارت تعلیم کے ساتھ الحاق ہونا چاہتے ہیں۔ باقی یہ اپنے آزادی سے اپنے نصاب، تمام تر چیزیں جو ان کی نصاب ہے، ان کی اپنے نصاب درس نظامی کے متعلق یہ چلاتے رہیں گے، اور یہ علماء کی اپنے سوچ کے مطابق جو اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اضافہ کر لیں گے، جیسے دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم وغیرہ کے متعلق یا عصری تعلیمات، یہ علماء خود ہی اس کے متعلق سوچ کر اضافہ کرنے، بلکہ کیے بھی ہیں۔ وفاق المدارس میں الحمدللہ اس وقت میں میٹرک کے بچے میٹرک پڑھ رہے، انٹر پڑھ رہے، اور یہی وفاق المدارس کی طلباء الحمدللہ اور میٹرک کے اندر A1 گریڈ پوزیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مدارس دینیہ کے اندر مسلک بریلوی کا طلباء بھی جو ہے میٹرک وغیرہ کر رہے ہیں، سبھی اپنے عصری تعلیمات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن حکومت کی یہ سوچ ہے کہ وزارت تعلیم میں شامل ہو جائے، وزارت تعلیم میں شامل کر کے یہ چاہتی کیا ہے کہ بھائی کہ اس میں سائنس پڑھایا جائے، میتھ پڑھایا جائے، اس کی بعد جو انگریزی وغیرہ کی تعلیم جاری رکھی جائے، اور اس کی ٹیچرز جو ہے وزارت تعلیم کی ذریعہ سے اس کی ایک فنڈ، 1 ارب روپیہ کی فنڈ ان لوگوں نے جو ہے مختص کی ہے تاکہ یہ مدارس دینیہ کو دی جائے، اور اس کی ذمہ داری مفتی عبدالرشید صاحب مجموعہ علوم الاسلامیہ کہ 1 ارب کی فنڈ دیے ہیں، اور یہ دینے کے بعد کہ یہ لوگ اسی وزارت تعلیم میں شامل ہو گئی۔ ان کی قول کے مطابق کہ 18,000 مدارس جو ہے مجموعہ علوم الاسلامیہ کی اسی تعلیم میں عمران خان صاحب کے دور میں کہ تقریباً 2019 میں یہ سارے مدارس شامل ہو گئی، تقریباً 18,000، باقی 22,000 کا
हुकूमत के पास कोई खबर नहीं है। कुछ हमारे इस मुल्क की वजीर आजम और सदर के अलावा भी और एक तबके ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई इन मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक तो हमें पता ही नहीं है, ये 22,000 मदारिस कहाँ है। तो भाई हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने ये जवाब दिए कि भाई अब हमें रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करते हैं, हम तो चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करने, हम आपकी दायराकार के अंदर शामिल होना चाहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरअमन लोग हैं, हमारे दीनी मदारिस के अंदर बेहतरीन तालीम हम दे रहे हैं, बच्चों के पीछे बेहतरीन हम मेहनत कर रहे हैं। ये बिल्कुल पुरअमन दीनी मदारिस पुरअमन है, इसमें किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी शामिल नहीं होती है। तो हम तो खुद चाहते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन की जाए, हमारे अकाउंट खोली जाए और हमारे हर किस्म की परेशानियां आप दूर करें, ताकि बैरूनी तलबा भी हमारे यहाँ आसानी के साथ पढ़े। और हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इससे मुताल्लिक फरमाया कि उस वक्त में जो दस्तखत किए हैं हजरत ने, तो हजरत इल्हाक की दस्तखत किए हैं, वजारत तालीम में शामिल होने का नहीं। आज इस बात के ऊपर हजरत कायदे मिल्लत शेखुल इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया जमीयत उलमा इस्लाम की हजरत ने सबसे पहले इस बात की एतराज किए हैं कि हम वजारत तालीम में शामिल होना नहीं चाहते। ये मुसव्वदा 26वां तरमीम की जो मुसव्वदा मंजूर होने का वजह यही है कि मौलाना फजलुर रहमान के दस्तखत के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने दस्तखत किए और यह 26वां तरमीम इसकी मुसव्वदा जो है ना मंजूर हुए। अगर हजरत दस्तखत नहीं करती है किसी सूरत में नहीं होता। उस वक्त में सबने ये हजरत से वादा किए कि हाँ मौलाना आप जो चाहते हैं वो हम करेंगे और करने के लिए तैयार हैं। हजरत ने कहा कि भाई तमाम मदारिस दुनिया की रजिस्ट्रेशन की जाए, और किस तहत कि सोसाइटी एक्ट यानी सिविलाइजेशन के तहत इसको जो है ना क्या किया जाए, रजिस्ट्रेशन की जाए। अब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया हजरत ने कहा जी हाँ मदारिस की रजिस्ट्रेशन होंगे तो ठीक है, मैं यहां दस्तखत करेंगे। 3 कवानीन और भी थे ना, इस्लामी नजरियाती काउंसिल और सूद के मुतालिक हजरत ने दस्तखत कर दी। अब हजरत से इन लोगों ने वादा किया है, वादा करने के बाद अब ये मुनाफिकाना वाले चाल ये खेलना शुरू कर दिए कि भाई हम लोगों ने दस्तखत किए हैं। अब सदर साहब ने उस पर एतराज कर दी, एतराज कहा कि नहीं ये दस्तखत ऐसे तो नहीं होंगे। अब हजरत कहने लगा कि भाई मदारिस दुनिया के रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट सिविलाइजेशन के तहत यानी वजारत सनात और तिजारत के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब एतराज ये है कि भाई वजीर तालीम की वजारत तालीम और वजारत सनात के अंदर रजिस्ट्रेशन होने में क्या है, क्या बुराई है, क्या कबाहत है। अब ये कबाहत की जहां तक बात है, देखें अब पाकिस्तान में क्योंकि एक है अकल की बात और दूसरी है तजुर्बा की बात। वो तजुर्बा बहुत बड़ी चीज होती है और अकल ये भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन तजुर्बा के सामने अकल का काम इतना बड़े हद अख्तियार नहीं करती हैं। अकल क्या है मेरे दोस्तों, देखें कि अकल चाहती हैं कि भाई तालीम का जो सिलसिला है वजारत तालीम में शामिल हो जाए, और जो कुछ टीचर वगैरह जो अंग्रेजी के लिए ना इंग्लिश के लिए मैथ के लिए और उसके बाद साइंस के लिए टीचर हुकूमत देंगे, उसकी तनख्वाह भी हुकूमत अदा करेंगे, तो ये तो बेहतरीन सहूलत है, ये अकल कहते हैं। लेकिन तजर्बा क्या कहते हैं कि हमारे उलमाओं ने शेखुल इस्लाम मुफ्ती आजम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दीगर बड़े बड़े उलमा हजरतों ने इनके बारे में सोचे हैं। इनसे पहले जो हमारे बुजुर्गान दिन गुजरे हैं, इन लोगों ने इस बात को सोच के रखा, ये इनकी तजुर्बा थे। अब देखिए भावलपुर इस्लामिक यूनिवर्सिटी दीनी मदारिस थे, बड़े बड़े उलमाओं ने पढ़ाया ना, बड़े शेखुल हदीस बड़े बड़े शेखुल हदीस थे वहां, बुखारी पढ़ाने वाले, तिरमिजी पढ़ाने वाले, अबू दाऊद शरीफ पढ़ाने वाले असातिज़ा थे, फिक़ह के ऊपर बात करने वाले असातिज़ा थे, हर किस्म की फन की उस वक़्त के उलमा थे, बड़े बड़े अल्लाह का वली बड़े बड़े बुजुर्गान दीन भावलपुर इस्लामिक यूनिवर्सिटी पढ़ाते रहे, बहुत बड़ी मदारस। और वजारत तालीम में जैसे किया जाने के बाद ही वो भावलपुर इस्लामिक जामिया भावलपुर थे, और भावलपुर जो है ना मदरसा क्या हो गया यूनिवर्सिटी, भावलपुर यूनिवर्सिटी बन गई। तो आप देखें भाई ये लोग इतना जोर दे रहे हैं, और इसे ही पेशावर में है, इसे ही लाहौर में है, बड़े बड़े दीनी मदारिस बड़े बड़े दीनी जामियात
वजारत तालीम में जाने के बाद वो उसकी हैसियत नहीं रहे, दीन की तालीम खत्म हो चुके हैं, वहां लड़का लड़कियां एक साथ पढ़ना शुरू कर दिए, वहां मखलूत निजामें शुरू हो गए कि भाई ये तो यूनिवर्सिटी बन गई। अब यूनिवर्सिटी बनने के बाद ही वजारत तालीम के अंदर वो हैसियत खत्म हो गई दीनी मदारिस की। ये हमारे उलमा ने तजुर्बा कर ली। इसी तरीके से हमारे उलमा ये भी कहते हैं कि भाई अगर आप सोसाइटी एक्ट, सिविलाइजेशन, वजारत सनात और तिजारत के तहत हमारे मदारिस दुनिया को अगर आप शामिल नहीं करना चाहते हैं तो आप ये मुझे बताओ, मदरसातुल सिंध, मदरसातुल इस्लामिया, उसको वजारत तालीम के अंदर क्यों नहीं शामिल करते हैं? अल्लामा ओपन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको वजारत तालीम के अंदर शामिल क्यों नहीं करते? अगर वजारत तालीम में शामिल करना है तो दी सिटी है, बहुत बड़ी स्कूल है, दी वेगन है, बहुत बड़ी स्कूल, जिनकी 50-50 हजार रुपया जिनका फीसें हैं ना, ये बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को आप इसमें शामिल क्यों नहीं करते हैं? ये कराची के अंदर भी और लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, और वहां जो है ना, जैसे द बिगन के नाम से, उसके बाद दी सिटी के नाम से बड़े बड़े स्कूल है, तो वो सिविलाइजेशन के अंदर शामिल है, और वो सोसाइटी एक्ट यानी वजारत सनात तिजारत के अंदर शामिल है। जितनी एनजीओ यहां काम कर रहा है, ये सबके सब क्या है, उस वजारत जो है सनात और तिजारत के अंदर यानी सिविलाइजेशन के अंदर ना, सोसाइटी एक्ट के तहत ये रजिस्ट्रेशन है। तो ये अगर रजिस्ट्रेशन करना ही है, दीनी मदारिस के पीछे आप क्यों लगे? बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को तो कर लो। अब जब हमारे उलमाओं ने तजुर्बा कर चुके हैं इसके मुतालिक, कि वह तजुर्बा हो चुके हैं कि बड़ी बड़ी जामियात, बड़ी बड़ी मदारिस वो यूनिवर्सिटी बन गया और उसके अंदर मदारिस की हैसियत नहीं रहा, और वहां बच्चे जो है वहां पढ़ाई तालीम के सिलसिले ही खत्म हो गई। आज जामियातुल रशीद के मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने किए हैं। आज अगर मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब जिंदा होते तो हजरत कभी किसी सूरत में इसको कबूल नहीं फरमाते। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उसमें ये हुकूमत की सहूलतें लेने के लिए और पूरे दुनिया के अंदर जामियातुल रशीद की मुफ्ती अब्दुल रशीद रहीम दामत बरकातुहुल आलिया को सरकारी मुल्ला के नाम से पुकारे जा रहे हैं। लेकिन हजरत की अपने सोच है, हजरत की अपनी अकल थे कि भाई ये तो जो है ना दीनी मदारिस में वजारत तालीम में शामिल होना चाहिए। हम अभी तक तो सही चल रहा है, अभी चौथा साल हुआ, 5 साल के अंदर हुकूमत जो लॉलीपॉप दे रहा है, बहुत सारे उलमाओं को पता भी नहीं है। उलमा समझ ही नहीं पा रहे कि वजारत तालीम की अंदर शामिल होने के बाद में क्या हो सकता है। और सारे मदारिस अभी ये सख्ती नहीं कर रहे। जब सारे मदारिस दीनिया को वजारत तालीम के अंदर शामिल करेंगे, उसके बाद होंगे फिर सख्ती, फिर वह अपने मर्जी की तहत। उस वक्त में जब तोक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जब दस्तखत किए हैं, तो हजरत ने उस वक्त में आर्मी चीफ ने जिम्मेदारी लिया, जीएसपी के अंदर बैठकर ये जो है ना दस्तखत हुए थे। लेकिन हजरत ने जिम्मेदारी ली कि वह वजारत तालीम वालों ने जिम्मेदारी लेने के बाद ही फिर बाद में कौन सी आर्मी चीफ आ जाती हैं, जैसे अभी हाफिज कुरान आए हुए, उनकी सोच और कुछ है, बाजवा साहब की सोच और कुछ है, फिर आने वाले जो चीफ साहब होंगे उनकी सोच और कुछ हो सकते हैं। अकीदे के एतबार से कोई कादियानी आ सकते हैं। वजारत तालीम के अंदर हर 5 साल बाद अगर चेंजिंग आ जाए, कोई कादियानी की किताब इन तालीम के अंदर शामिल हो सकता है ना, और किसी किस्म की जो इस्लाम से खिलाफ चीजें, मवाद जो है ना, उसी वजारत तालीम उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे उलमा हजरात, माना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया जमीयत उलमा इस्लाम के कायद हजरत ये नहीं चाहते हैं कि भाई सोसाइटी एक्ट के तहत सिविलाइजेशन और वजारत सनात और तिजारत के अंदर शामिल की जाए, जैसे एनजीओ, प्राइवेट स्कूल, अल्लामा ओपन यूनिवर्सिटी और मदरसातुल सिंध है। ये सारे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल दी बेगन दी सिटी जो सोसाइटी एक्ट के तहत शामिल है, तो हमें भी एक आजादी की तरह दीनी मदारिस को चलाने का इख्तियार दी जाए और सिविलाइजेशन वजारत सनात के अंदर शामिल की जाए, और सिविल एक्ट के तहत ना, सिविल यानी सोसाइटी एक्ट के तहत हमारे मदारिस को शामिल की जाए, ताकि हम आजादी के साथ दीनी मदारिस चला सकें।